Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the Java naming convention, and the second topic is about the constructor, which I have covered in last session. Today we are going to deep dive into this particular topic and the static keyword and this keyword. These are the topic which I have mentioned today. We are going to cover. So let us start from the Java naming convention. So I have prepared some notes. Basically, Java is having all the naming convention for the method, interface, on class, how you are going to create the class. So there are a few things which you have to be remember about the naming convention. If you are following this rule, that is good. If not, then it will not any harm. But if you are if you want to become a good developer and you are a developer, so you need to follow some certain rules. If you are doing this one, so you will be a good developer. And yeah, whenever you are following the naming convention or all the steps which Java have provided, and all the rule and regulation, so you will there is a less chances to be doing some mistakes. So you need to be giving the name which has some meaning and based on your assignment or your project. Okay. So here Java naming convention is a rule to follow as you decided what the name your identifier such as class, package, variable and constant, a method, etc. So basically, but it is not forced to allow you follow you, as I told you, like it is known as the convention on but not rules. So it is not mandatory, but if you're following, that is good. Like if I will tell you, like if you want to make a tea, okay, first you will try to add some water, then tea, then if you want to become, you want to you want to change some taste and you want to make a good tea, so you will add some other things as well who will improve your taste. जैसे कि अगर आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए पहले आप पानी रखेंगे, फिर चाय पत्ती रखेंगे, देन उसमें अदरक, इलायची या इलायची पाउडर, ये सब चीज़ें डालेंगे, देन आप उसको उबाल आने के बाद में उसमें मिल्क डालते हैं, राइट। अदर वे आप सारी चीज़ें एक साथ उसमें रख देते हैं, फिर भी वो उबल के बन जाते हैं, बट देयर टेस्ट इज डिफरेंट। ओके, सो सब चीज़ें आपने एक साथ डाल दिया है, उसका टेस्ट अलग रहेगा। अगर आपने हर एक चीज़ को डालने के बाद प्रॉपर टाइम दिया है उबालने का, उसका कलर जो है उसमें चाय चाय में आने के लिए, तो वो उसका अलग रहता है। मैंने मीन्स इफ यू फॉलोइंग सम सर्टेन रूल, so it is good to be because that will help you to be become your software good software developer. So nothing, there is no harm to be follow the rules. If you are doing, that is great. So basically there are some advantage. As I told you, you will less mistake first of all thing, so you will not able to do the most of the time like the mistakes which you are doing by not giving the naming convention. If you are suppose preparing one assignment, you are trying to be complete one assignment, and that assignment is new to some other person, so they, if you are giving the certain naming convention based on the rule, so that will help you to other person understand what you have written, so they will able to understand your code, so your code understandability will be increased. Okay, so by using standard Java naming convention, you make your code easy to read for yourself and other programmers as well. So the readability of Java program is very important. It indicates that less time is spent to figure out what this code does. ओके, सो आपका लिखा हुआ कोड है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट सामने वाले को समझ में आना चाहिए। सो योर कोड शुड बी दैट मच क्लियर कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए और उसको फोकस अब व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी डू इन योर कोड। सो द एम ऑफ योर कोड द अदर पर्सन ऑल्सो कैन बी अंडरस्टैंड। ओके, सो बेसिकली द क्लास के रूल की बात करते हैं। इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। इफ यू आर राइटिंग अपर केस लेटर, सो दैट इज गुड, इफ नॉट दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट इज इंडिकेट टू दैट you have to write the class name as upper, first letter is uppercase. It should be noun such as color, button, system and thread. It should be noun such as color, button, system and thread, etc. Use appropriate word instead of acronym. Means acronym, suppose I'm doing some code for addition, so I will give my class name is addition. I will not write a b c x y z, so that's why it's saying appropriate नाम होना चाहिए आपका। इंटरफेस की बात करते हैं। इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। इट शुड बी एन एडजेक्टिव सच एज रनेबल, रिमोट और एक्शन लिसनर। दीज आर other listeners we are having in Java. Use appropriate word instead of acronym. सेम यही चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, आपका इंटरफेस के बाद में मेथड्स की बात करते हैं। इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर लाइक एज मेन, प्रिंट, प्रिंटलन। जहाँ पे भी मेथड लिखा होता है आपका स्मॉल केस से ही स्टार्ट होता है। जो कैपिटल लेटर होता है वो आपके क्लास के लिए यूज होता है बेसिकली। इफ द नेम कंटेन मल्टीपल वर्ड्स, स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर सच एज एक्शन परफॉर्म्ड। आई हैव गिवन द एग्जांपल। Same we are having the for the in case of variable, it should start with a lowercase letter such as id, name. It should not start with the special character like
dollar sign, underscore, ampersand, all these things you should not be given by you declaring the variable name. If the name contain multiple words, start with the lowercase letter followed by an uppercase letter, such as first name, last name. That will be the good practice. Okay, avoid using one character symbols such as xyz, because suppose, as I told you, I have given one example. If you want to write a program to input two values, so your value should be input 1, input 2, not a b x y z. Okay, so if you're doing xyz also, there is no harm to be doing that. But as I told you, if you're following the some certain naming convention rule, that is good for you. Okay, that is the significant for the a good developer. Package की बात करते हैं, it should be a lowercase letter such as Java lang. If the name contain multiple words, it should be separated by dots such as java.util or java.lang. As you have seen my Eclipse window, I have created one package in Eclipse. You don't need to be write the just you need to give the name, and then directly it will attach to your project. But while you are writing code in Notepad, you have to be given the package, and you have to run a certain package folder your code. So nowadays we are using the id, so no need to be worry. Everywhere you are going, they will use id only, no, not notepads. Okay, so we are talking about the constant. It should be in uppercase letter such as red, yellow, green, whatever the name you have given. If the name contain multiple words, it should be separated by an underscore such as max priority. This is be very important. Every project is having this constant, some constant followed by your project, whatever the project you are using. If you are in a banking domain, so anything, so you have to remember this. If you are not following this, your pr will not going to be approved, and your lead will definitely ask you to be change the name according to naming convention. Okay, these things happened with me when I was fresher, but according to the experience, so we are all having the experience, so there is less type of mistake we are doing kind of. But if you are new to the programming, so I will suggest follow the all the naming convention. Okay, it may contain digit but not as the first letter, as I told you. Okay, so in the last slides, all these are the theory concept. एंड यू हैव टू बी रिमेंबर वन थिंग एक्चुअली इन जावा की अगर हम बात करते हैं तो जावा फॉलो द केमल केस. ओके, व्हाट इज द कैमल केस? कैमल केस इज syntax of naming that class, interface, method and variable which you have given and which is followed by the naming convention. If the name is combined with the two words, the second word will start with the uppercase letter always, such as action performed, as I have given the example. And the first name, as I have given the example, first small है and capital है, तो ये कैमल केस होता है, सो कैमल केस बोलते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ा दिया है. तो अभी जो मैं नया इसमें आपको कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ, कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक पे हमने लास्ट में टॉपिक छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर की हम बात करते हैं, मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको लिख के बताया था नोटपैड में. अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको मतलब हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक में. तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. सो ये हम आपको करने के दिखाने वाले. इट इज ए स्पेशल टाइप, ये आप लिख सकते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज. ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है किसको? ऑब्जेक्ट को. ओके, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. अभी वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाली हूँ. एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इनडायरेक्टली. अगर आप यूज भी नहीं करते हैं, तो जब भी आप न्यू कीवर्ड के थ्रू कॉल कराएंगे तभी आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं. ओके, सो यहाँ पे इसी पैकेज में हम एक नया पैकेज बनाते हैं. न्यू पैकेज पे क्लिक करते हैं. टुडे इज 11 जनवरी. सो आप इस तरीके से नाम नहीं दे सकते, आपको नेम फॉलो करना पड़ेगा. मैंने इसका नेम दे दिया है com.java-oops.example. यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, एक नया क्लास इसके अंदर हमने क्रिएट किया है. हम अभी हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देने वाले हैं. तो मेरा कोई भी क्लास हो सकता है, तो मैंने अभी टेस्ट अपनी क्लास का नेम रख लिया है. आप कुछ भी रख सकते हैं. मैंने टेस्ट क्लास का नेम रखा है और एक मेन मेथड लिया है यहाँ पे. अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करने वाली हूँ. देखो, दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट it will call the default constructor that I will show you right now. Suppose I have given one number here.
and I have created one variable name. Okay, now I'm going to print this value. What I'm going to print is this value I'm going to print. Okay, which value I will be going to print? Num. ओके अभी हम आते हैं जिस पे आपको लग रहा होगा कि ये रॉन्ग है, द यू आर राइट एक्चुअली। मुझे ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? इंस्टेंस वेरिएबल। और जो मेथड है आपका वो स्टैटिक है तो डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज, तो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके अभी हम बात करते हैं, ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके कमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि कमेंट होता है एक्चुअली। अभी हम इसको ऑब्जेक्ट से कॉल कराते हैं obj.num, एंड ये दूसरे की बात करते हैं, इसके हम क्या लिखेंगे, आपका obj। ये obj की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अ रेफरेंस नेम होगी, रेफरेंस होता है, ये न्यू कीवर्ड होता है जो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ योर क्लास, इसको ही आप कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इतने पार्ट को, और एक क्लास नेम होता है। दिस इज़ अ वे यू हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। रिमेंबर दिस, you can type this line. If it calls a default constructor, if there is no constructor available in your class, okay, इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। एंड वन मोर थिंग, constructor basically used to initialize the instance variable value, जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा। अभी देखना, मैंने कोई वैल्यू नहीं, वो रैंडम वैल्यू कोई भी यहाँ पे असाइन करेगा। मैंने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया, 0 नल, इसका टाइप क्या है, इंटीजर, तो क्या आ जाएगा 0, इसका टाइप क्या है, नल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल। तो ये कैसे हुआ है, इसके ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास। So basically Java compiler create a default constructor if you are not having any constructor in your class. Okay, and if you are having the constructor, so what you will do, I will do, so this is the way, you no need to write anything inside this constructor. No, not inside, sorry, you no need to be write any data type here. Okay, so यहाँ पे सिंपल आप क्लास के नेम के दे देंगे, इसके कुछ रूल होते हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए, दैट आई विल डिस्कस, बट हियर आई एम गोइंग टू राइट num1, एंड मैंने यहाँ पे नेम पे यहाँ पे अपने इसका नाम रख दिया है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंट एक्सचेंज, आई हैव गिवन दिस नेम एंड सेमीकोलन। नाउ आई विल रन दिस। ओके व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। जावा एप्लीकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो ये प्रूव होता है कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है दैट इज यूज्ड टू हेल्प यू टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया है। ओके नाउ अभी हम अपनी विंडो पे आते हैं और यहाँ पे हम रूल लिखते हैं कुछ, देयर इज सम सर्टेन रूल्स ऑफ क्रिएटिंग योर कंस्ट्रक्टर, रूल्स ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के मेरे पास कुछ रूल होते हैं, मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, पर आपके लिखने के लिए, कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज योर क्लास नेम। यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम मस्ट बी द सेम एज योर क्लास, जो भी क्लास का नेम होगा वही होगा। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर नोट हैव द रिटर्न टाइप, तो मस्ट नोट हैव रिटर्न टाइप आप इसे लिख सकते हो। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, द कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंस वेरिएबल को रिटर्न करता है, इसकी वैल्यू को नहीं करता है, बट इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आपके इंटरव्यू में भी डेफिनेटली पूछा जाता है। The Java constructor cannot be abstract, और अब ये abstract क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक का मतलब पता है, फाइन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो इनिशियलाइज होगा और एवरी टाइम इनिशियलाइज होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप उसको फाइनलाइज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर फाइनल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फाइनल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर। ओके ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट फाइनल
synchronized and statics and this one. ओके सो ये मेरा यहाँ पे आ गया है. तो ये रूल होता है बेसिकली वी कैन एक्सेस मॉडिफायर while dealing with constructor because it control the object creation. We can use a private protected and default because we are having several type of constructor in Java. So I will mention here the types of constructor in Java. First is default constructor and second is parameterized constructor. आपको डिफॉल्ट से समझ में तो आ गया होगा कि ये हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका कोई पैरामीटर नहीं है. पैरामीटर मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. जैसे कि हमने ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने उसमें पैरामीटर कुछ वैल्यू पास कराई थी, तो वो सब नहीं है यहाँ पे ना. तो उसका ही मतलब ये उसका मतलब यही है कि नो आर्ग्यूमेंट इज देयर. सो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है. यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट. सो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट और नो पैरामीटर. ओके तो ये आपका डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. पहले हम इसके डिफ़ॉल्ट की बात कर लेते हैं, सिंटेक्स के डिफ़ॉल्ट की बात कर लेते हैं. सिंटेक्स सिंपल है. डिफ़ॉल्ट में तो है मतलब आपने क्लास का नेम दे दिया है. यहाँ पे ये क्लास नेम है सपोज कुछ भी, तो आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते. बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है, ठीक है ना. तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है. अगर पैरामीटर नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दिया है तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया. आपको बताया कि आपको रूल फॉलो करना है तो कैपिटल का जो नेम है पर क्लास का वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे आप नेम लिख देंगे. तो ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. और अगर मैं इसमें यहाँ पे पैरामीटर असाइन कर दूँ इंट बी तो ये आपका क्या कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके लेट्स सी द एग्जांपल फॉर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सॉरी इंटरफेस पे क्लिक हो गया. यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्लास का नेम दे दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश कर देंगे इसको. ओके तो यहाँ पे अभी मुझे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है. और कंस्ट्रक्टर को बनाने का रूल आपको पता है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और ये सिमिलर आपकी क्लास के नेम के बराबर होता है. मैंने SYSO दिया और यहाँ पे सिंपल लिख दिया हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज. Okay, and now I'm going to just create an object of this class. Obj is equals to new, and I told you no need to call this constructor because whenever you are creating the object of your class by default your constructor is call. So आपको यहाँ पे ऐसे मेथड की तरह कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इसको कोड को सेव किया है और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आपका एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. तो ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर, ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है. अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका हाँ ये आप नोट डाउन में रखना. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास compiler automatically create a default constructor. You have to remember this one. And what is the purpose of default constructor? As I told you in last session, not last session, just before 10 minutes only, because the default constructor is used to initialize the instance variable value as I have shown you in example. If you will not assign any value, by default it will assign the value as per your data type. So ये आपको यहाँ पे नोट में ध्यान रखना है. हम यहाँ पे जाके एक नया क्लास क्रिएट करते हैं और नई क्लास का नेम मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं, यहाँ पे डेमो रख देते हैं. ओके डेमो, ये test1 रख देते हैं. ओके फाइन, यहाँ पे test1 रख दिया है. मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको शो करना है. मैंने वो पहले भी किया है. यहाँ पे इंटीजर है मैंने, और यहाँ पे इंटीजर में यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है, एम्प्लॉय का सैलरी ले लिया है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया है और स्ट्रिंग में यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग द वेरिएबल एम्प्लॉय नेम
ओके ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया है। अभी बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम किया होता है। एज ए टूल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज टू इंस्टेल द इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू इफ यू डू नॉट असाइन दिस वैल्यू। तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट भी होता है। अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। और ये क्या करता है, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये यहाँ पे इसको क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है। पहले तो हम वन बाय वन इसी कोड को करेंगे। SYS में गए हैं यहाँ पे, और मैंने इस लाइन में यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सैलरी मैंने दिया नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट जस्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वेरिएबल। ओके emp_sel। ओके यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज ये कैसा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करा है वो ऑब्जेक्ट डॉट करके ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे, दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है एम्प्लॉय नेम। ओके, तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे सेम ऑब्जेक्ट डॉट emp नेम। ये प्रिंट हो गया। अभी हम इसको रन कराएंगे, तो अभी आप देखना इसका जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी 0 और ये नल, यहाँ पे इसको भी कल ये लगा देंगे तो आप ये इस तरीके से आ जाएगा। नल क्यों है, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप है। सॉरी। अभी हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया। मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक 0 नल, जो भी आपने दिखा डिपेंडेंट ऑन द योर डेटा टाइप। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक मेथड बनाया है। मैंने सपोज वही डिस्प्ले करके एक मेथड बना दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं, डिस्प्ले हम वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये जो वैल्यू हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, ये Ctrl+X करके मैंने इस वाले में यहाँ पे कॉल करा दी। और यहाँ पे क्या कराया मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को कॉल करा दिया। किसको कॉल करा दिया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को। तो ये मेरा मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो जब आप इसे कॉल करेंगे तो सेम आपको आउटपुट 0 नल ही आने वाला है, बिकॉज आपने वहाँ पे नहीं दिया। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते करते आपको test1 जो भी क्लास का नेम दिया है, और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे emp सेल। और यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, और इसका नेम दे दिया मैंने emp नेम। देखो मेरा उसमें अंडरस्कोर है, इसमें अंडरस्कोर नहीं है, तो आपको इस चीज़ का रिमेंबर रखना है। तो अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू सी लाइक मैंने यहाँ पे जो emp_sel ये जो यूज़ किया है, इसकी वैल्यू मैंने इसके अंदर असाइन कर दी है। ठीक है, यू कैन डू दैट, yes you can, लेकिन this is not the good practice, you have to use this that I will tell you how you will use। okay, because हम एक ही वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए चार चार वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे बेकार में, मतलब आपका कोड की लाइन बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, वो हम नीचे प्रिंट कराया था, इस वजह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। और ये आपने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ तो हो गया है मिस्टेक। ओके, Ctrl+S कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट एस प्रिंट हो रहा है। ओके सो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर test1 इज अनडिफाइंड। मैंने test1 बोल रहा है कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है अब कंस्ट्रक्टर, और लेकिन मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। अभी ये मुझे वैल्यू ऐसे इसलिए आना शुरू हुआ है बिकॉज आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, तो मैंने इसका नेम दे दिया यहाँ पे इंटेली। यहाँ पे ये अपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, तो अभी देखिए एरर चला गया। अभी हम इसको रन कराते हैं, अभी देखने क्या होता है। रन कराएंगे, जब एप्लीकेशन पे जाएंगे, ओके सो वैल्यू का आउटपुट आ गया आपका। तो अभी आपको समझ में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो हमने क्या करा कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपकी वैल्यू को इनिशियलाइज कराया, और उस मेथड में कॉल करा के डायरेक्टली उस मेथड को कॉल करा के इस वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो है ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये बिकॉज देखो सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम पैरामीटराइज में, तो हम ये गुड प्रैक्टिस नहीं होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, दिस कीवर्ड का। अभी थियोरेटिकल में आएगा डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टर में, मेथड्स में, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, बट इफ़ यू वांट टू शो द नोट्स आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इससे पहले हम पढ़ रहे दिस कीवर्ड। सो मैंने अभी आपको बताया कि ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल को सिखाने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जावा के अंदर दिस कीवर्ड बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, और बहुत टाइम पे यूज़ होता है, मल्टीपल टाइम। हम हमेशा ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होता है कि हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करें।
तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा के अंदर दिस कीवर्ड। तो ये क्या होता है बेसिकली, देयर कैन बी मैनी यूजेस ऑफ द जावा कीवर्ड in that this keyword actually in that first we can say reference variable that refers to the current object. दिस कीवर्ड क्या होता है बेसिकली, दिस कीवर्ड यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इज यूज टू रेफर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेफर, इज यूज टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि अभी अपने एम्प्लॉय आईडी लिया तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया तो आपने डिफाइन कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे दिस इज अ रेफरेंस, आप इस डेफिनेशन को ऐसे लिखें, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। वो रेफरेंस के लिए यूज हमने किया वहाँ पे, दैट रेफर, दैट रेफर्स, किसको रेफर करता है, टू द करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ये आपका, ठीक है। ओके अभी कैसे होता है बेसिकली, रेफर करेंगे जो भी स्टेट एंड बिहेवियर जो भी जिस तरीके से होगा, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इफ़ यू वांट टू लिसन यू कैन। सो बेसिकली दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, इम्प्लिसिटली आप उसे कॉल करा सकते हैं। थर्ड होता है आपका दिस मेथड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, विच दिस कीवर्ड नहीं, दिस मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास में 3-4 क्लासेस है तो उसमें अगर आपको करंट क्लास का जो जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका अगर आपको मेथड कॉल कराना है तो उसके लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट होता है दिस कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट इन द करंट कंस्ट्रक्टर और एनी कंस्ट्रक्टर, एंड दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड, एंड यू नो नीड टू बी वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट आई विल लेट यू नो लेटर। हम वन बाई वन पे यहाँ पे बात करते हैं। मैं पहले वाले ही एग्जाम्पल पे जाती हूँ और उस वाले एग्जाम्पल पे ही आपको शो करके दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। अभी जैसे हमने ये वेरिएबल यूज़ किया है, ये हमने दो दो नेम यूज़ कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे दो दो नेम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑलरेडी इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करा है। ये दिस का एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे आप ये इसको पेस्ट कर देंगे और ये सॉरी गलती से गलत जगह को भी पेस्ट, इसको कंट्रोल से ही कर दिया है मैंने, कंट्रोल भी कर दिया है और कंट्रोल से कर दिया है और इसको मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अभी आप देखें तो ये एज आई टोल्ड यू अभी मुझे ये एरर दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, दिस यूज करना है, ये करंट इंस्टेंस को कॉपी करते हैं आपके यूज को करते हैं, और यहाँ पे अगर आप दिस यूज कर लेंगे इस पे भी दिस डॉट, तो ये आपकी करंट वैल्यू में जो भी आपने असाइन किया होगा वो असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये एस गलती से पेस्ट हो गया है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, दैट्स इट। सो दिस का एक तो यूज़ ये होता है, बहुत सारे यूज़ होते हैं, हम पहले यूज़ की बात करते हैं। एंड पहले आप एक अलग क्रिएट यहाँ कर रहे थे वेरिएबल, एक यहाँ पे अलग पैरामीटर क्रिएट कर रहे थे, फिर यहाँ पे दो, दैट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज टू इंस्टेंस द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आप सेम भी दे सकते हैं बट उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा दिस को, तो दिस इज यूज टू रेफर द इंस्टेंस वेरिएबल करंट ऑब्जेक्ट। तो इज दिस डॉट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी, तो करंट जो इस एम्प्लॉय सैलरी की वैल्यू होगी वो इस वाले वेरिएबल में डिफाइन कर देगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है बेसिकली जो भी लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल है दोनों डिफरेंट होते हैं, बिकॉज लोकल वेरिएबल में तो आप मेथड के अंदर लिखते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल आपके मेथड के बाहर होते हैं, सो देयर इज नो नीड टू बी यूज एट दैट एज टोल्ड यू। सो ये हम आपका अप्रोच रहता है बेसिकली। सो I mean, this is the way like how it is working. So we had discussion about this session constructor and the this keyword. I hope आपको सेशन समझ में आया होगा। If you are able to like the way and you if you are able to understand and like the way I teach you, so kindly subscribe my channel. If you have any doubt you can write your question in comment. I will try to resolve all the questions. Thank you so much for your time and thank you so much for watching Intelligence Exchange. Please subscribe my channel if you are new to this. Thanks.